आदाब नाजरीन, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि राम पुनियानी ने किस तरह हिंदुस्तान की तारीख के साथ होने वाले खिलवाड़ का पर्दाफाश किया था, इसी तरह डॉक्टर कंचन जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस एकेडमिया वर्टिकल के कौमी सदर हैं, उन्होंने भी बताया कि NCERT के निसाब को किस तरह भगवा रंग देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर कंचन की तकरीर रियासत टीवी के नाजरीन के लिए पेश खिदमत है। Adding more about RSS and also removal of the Dalit history. Many Dalit poems and important movements like the Chipko movement, Narmada Bachao Andolan, Dalit Panthers, and the anti-emergency protests which were conducted by the Dalits. So all such leadership movements of the Dalits have been completely erased from the books now. Like for example, class 12 political science book, there was an entire chapter called Rise of Popular Movements. That entire chapter is removed. Mass struggles, class 10, chapter 3, mass struggles, it has been dropped. And this mass struggles previously used to have about BAMSEF, which was established by Kashiramji. That is, you all must be knowing about BAMSEF, which stands for Backward and Minority Communities Employment Federation. So this has completely been dropped. And from class 12, social movements, deletion, the farmers' protest has been deleted from the history books. Deletion of excise on farmers' protests. So like that, you can see many excerpts wherein the lines have been changed. For example, the famous Dalit writer Om Prakash Valmiki. So his lines have been deleted. The lines were, these were the lines which he had written. The term Dalit also refers to people who have been marginalized in one way or the other. Many Dalits feel that they are not given equal status in society. This complete line has been removed now from the textbook. So like this, you can see a lot of changes which are very subtle and but very, very poisonous. And yeah, another thing which was very surprising was previously when sati was mentioned, it was mentioned as social evil. They are social sciences teachers also, I think here. But now you won't find the word social evil for sati. It is being projected in such a way that it was a practice of high devotion and voluntary practice. So wherein there are written records, wherein there is a proof that they were coerced, they were forced, they were sometimes burned forcibly with their husbands, dead husbands. But now all that narrative has been removed. So it is being kind of glorified. So we are like going 200 years, 300 years back in history, not even 100 years. So the Britishers, the struggle, even the movement of Raja Ram Mohan Roy to abolish sati, all that has been diminished now in the new books. So like this, wherever sati was mentioned, everywhere they, see like in class 12 book they have written, it's a voluntary act of loyalty. So it is glorification of sati, isn't it? That is how they are reframing it. So like this, there are several references which I can give you, but the time won't be enough. As sir said, we will have to document this. We have to actually release one book over this, and we need a complete dedicated organization working on the history. Because see, for example, recently in Karnataka, when BJP was in power, they had in their books that Savarkar used to fly on the birds of the wings of the bulbul and he used to come back to prison every day. But now when Congress came to power, that was removed from the syllabus. So like this, history has to be rewritten now. Now one fine day again Congress will be in power now. And then we have to document all this because we need to immediately change, we need to rewrite the wrong history which they are writing in the textbooks now. So that documentation efforts, maybe I feel like today will be a good starting point for that. I'm sure many are already working on that, and Congress should also focus on this documentation of these changes in the narrative which they are doing. And we must again work to reframe the narrative and again set right the discourse of history. With this, I really want to thank you all for being patient enough for listening to me, and even though we started a bit late, but all of you were very patient. And now I would like to request our first speaker for today, Dr. Kanchan, to please come and occupy the dais and take the mic. Thank you so much. She's a PhD in education, so we are all eager to hear. Professor Ram Punyani ji, Murli sir, Padmaja ma'am, State Head of Telangana Academia Vertical Shri Latif ji, and Ms. Maria ji, Deputy State Head for
तेलंगाना एकेडमिया वर्टिकुलर ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस। मैं शिक्षा के क्षेत्र से आती हूँ। शिक्षा मेरा मेन सब्जेक्ट एरिया है, एजुकेशन। और हिस्ट्री को मैं थोड़ा छोड़ती हूँ इस समय। मुझे लगता है राम पुनियानी सर से बेहतर इस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हिस्ट्री के जो डोमेन में जिस तरह की चर्चाओं की ज़रूरत है वो करने के लिए सक्षम हूँ। तो मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा टच नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि मैं एजुकेशन से आती हूँ तो मैं टेक्स्ट बुक्स पे बात आपसे ज़रूर करूँगी। और शुरुआत में इकबाल साहब की कुछ पंक्तियों से कर रही हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इकबाल साहब ने जब पंक्तियाँ लिखी होंगी उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि ये पूरी सेंचुरी के बाद इन पंक्तियों का मतलब अब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी लिया जा सकता है। और वो पर्सपेक्टिव आज हम इतिहास का लेकर चलेंगे, इतिहास की टेक्स्ट बुक्स का लेकर चलेंगे और एजुकेशन का लेकर चलेंगे। समय आप सब जानते हैं, अगर मैं घटनाओं को लिस्ट करना शुरू करूं केवल पिछले 2-3 हफ्तों की, तो देश में किस प्रकार की घटनाएं हम अभी विटनेस कर रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ अगर हम सभी उन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, कुछ अगर उन बातों को मैं कहूँ तो एक प्रकार की घटनाएं हैं जिसमें हम स्टेट की पावर के एक हैवी कंसंट्रेशन को देख रहे हैं, सिटीजन्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। और एक वो जो हैवी कंसंट्रेशन है वो आइडियोलॉजिकल है, वो पॉलिटिकल पावर का कंसंट्रेशन है, और वो ऐसा एक अटैक है जो डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, प्रोग्रेसिव लिबरल आइडियाज़ के अगेंस्ट है। मैं मुख्यतः 3 बातें करूँगी। पहले भाग में मैं ये जो शब्द डिस्टॉर्शन है, और हम जब यहाँ आए थे तो सर ने एक बात बोली कि वो करेक्शन भी की तरह भी देखा जा सकता है, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में एक बात आपसे पहले भाग में करूँगी। उसके बाद मैं नॉलेज के बारे में बात करूँगी कि ज्ञान क्या है और ज्ञान किसे समझा जाए और किसे समझा जाता है। और तीसरे भाग में मैं कुछ खतरों की, कुछ आशंकाओं की बात करूँगी। तो सबसे पहले ये जो शब्द डिस्टॉर्शन है, ये आज जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया जा रहा है, कुछ फॉल्स फेक रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बात हो रही है, कुछ इनएडिक्वेट और ओमिशंस की बात हो रही है, और कुछ गलत रिप्रेजेंटेशंस की बात हो रही है। जैसे अभी सती के बारे में जो बात कही गई वो एक तरीके की मिसरिप्रेजेंटेशन है कि सती को ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है। कहीं पर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी है कि बिल्कुल ही गलत बात जो है, जो कभी नहीं हुई, वो कही जा रही है। जैसे आप इरफान हबीब साहब का 2021 में छपा सोशल साइंटिस्ट में एक लेख पढ़ेंगे जो उन्होंने यूजीसी करिकुलम के बारे में कहा है, लिखा है। तो उसमें वो लिखते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से कुछ चीज़ें पीरियोडिकली गलत रिप्रेजेंट की जा रही हैं, तो उनके अंदर बहुत गलतियाँ हैं। कहीं कहीं पर ओमिशन है, जैसे उन्होंने बोला कि दलित हिस्ट्री में से कुछ चीज़ें जो बिल्कुल गायब कर दी गई हैं, या अगर अभी आप देखें तो 2002 या 1992 के जो हमारे सामने जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं उनका भी आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में से ओमिशन है या उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो एक बात है जो डिस्टॉर्शन की, जिसको सर ने करेक्शन भी कहा, उसके लिए एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो ये कि अगर लायंस के अपने कहानीकार होते तो हंटर कभी हीरो नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। अब इससे आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, जैसे सर ने भी वो सवाल किया कि तो हिस्ट्री का जो डिस्टॉर्शन है वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, अब तो करेक्शन हो रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण आक्षेप या एलिगेशन जो है ये लगाया जाता है, और ये एक पर्टिकुलर संदर्भ में हमें समझने की ज़रूरत है। अब उसका जो संदर्भ है वो क्या होगा, वो संदर्भ हम शिक्षा की थ्योरी से लेंगे, हम एजुकेशन की थ्योरी से लेंगे, और वो ये है कि टेक्स्ट बुक्स बनती कैसे हैं।
तो हम पहले नॉलेज पर नहीं जा रहे हैं, हम नॉलेज को बनाने के, उसके सृजन के प्रोसेस को फोकस कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक बनती कैसे है। आप अगर कक्षा 8 की NCERT की टेक्स्ट बुक को उठाकर देखें और उन व्यक्तियों के नाम पढ़ें जिन्होंने वो टेक्स्ट बुक लिखी है, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि वो किस प्रकार के लेखक हैं जो टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं। तो अगर आप पिछले या कांग्रेस के कार्यकाल में जिनके ऊपर डिस्टॉर्शन का एक एलिगेशन नए इतिहासकार लगा रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर खेमे से आते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, वो अगर आप उनमें नाम पढ़ेंगे आपको नाम मिलेगा विपिन चंद्र का, रोमिला थापट का, सतीश RS शर्मा का, सतीश चंद्र का, नीलाद्री भट्टाचार्य का, मृदुला मुखर्जी का। तो ये हिस्टोरियंस हैं, इनके लिखे हुए लेख हैं, इनकी लिखी हुई एक फ्रेटर्निटी द्वारा स्थापित और एक्सेप्ट की गई, स्क्रूटिनाइज की गई रिसर्चेस हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशंस हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं जो फ्रेटर्निटी स्क्रूटिनाइज करती है। तो ये वो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने लंबे कार्यकाल तक इन कुछ विश्वविद्यालयों में सिस्टमैटिकली साइंटिफिक तरीके से या उन रिसर्च के मेथड से इतिहास पर रिसर्च किया जिसके लिए उनको विश्व में जाना जाता है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है लेजिटिमेट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा उस फ्रेटर्निटी के द्वारा। तो हिस्टोरियन कौन है, इसका जो निर्णय है वो हिस्ट्री के लोग करेंगे, और वो लोग करेंगे जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर उस प्रकार की महारत, उस प्रकार की ट्रेनिंग हासिल कर रखी है। लेकिन अगर आप इस समय टेक्स्ट बुक्स को उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का कोई एडवाइजर का नाम मिलेगा, आपको एक नेवल ऑफिसर का नाम मिलेगा, आपको सोशल साइंस में लिखे जा रहे टेक्स्ट बुक के लिए कॉमर्स के एक्सपर्ट्स के नाम मिलेंगे, इंग्लिश के प्रोफेसर्स के नाम मिलेंगे। तो जब आप इस बात को समझें या हम इस बात का ध्यान से इसका एक मतलब निकालें, वो ये है कि इतिहास लिख कौन रहा है, किसके पास वो इस समय अथॉरिटी है बुक्स लिखने की। तो सबसे पहला प्रश्न किस पर उठता है, संस्थाओं पर, कि वो संस्थाएं जैसे NCERT, CBSE या और ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनको एक समय में स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम लिखने के लिए बनाया गया था, जो क्वालिटी का ध्यान रखकर ऐसे करिकुलम की संरचना करेंगे जो देश के सभी डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा। हालांकि वहाँ पर एक आप ये बात हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि देश में इतनी विभिन्नता है तो एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं हो सकता, इसीलिए शायद शिक्षा को स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में रखा भी गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में, कि स्टेट भी उस पर अपने कुछ डिसीजन ले सके और सेंटर भी उस पर ले सके। तो अगर ये टेक्स्ट बुक्स के बनने के प्रोसेस को हम ध्यान देंगे, सबसे पहला प्रश्न हमें जो समझना चाहिए वो ये है, टेक्स्ट बुक्स कौन लिख रहा है, वो लिखने का इस समय अधिकार किसके पास है। दूसरी बात, ये जो टेक्स्ट बुक्स लिखी जा रही है, जो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट से उठाऊंगी कि डिस्टॉर्शन है या करेक्शन है, इसका निर्णय कौन करेगा, इसकी मॉरल अथॉरिटी, इसको जज करने की एकेडमिक अथॉरिटी किसके पास है। हम ये मानकर चलते हैं कि संस्थाओं के पास एक एपिस्टेमिक अथॉरिटी है, मतलब ज्ञान का सृजन करने की, ज्ञान को लिखने की एपिस्टेमिक अथॉरिटी NCERT को दी गई, और ये माना गया कि NCERT इस रोल को बखूबी निभाएगा और संविधान में जो उनके लिए जो हमारी जो प्रेम्बल जो हमें कहती है उससे गाइडेड होकर वो इन किताबों की संरचना करेगा। यदि मैं आपको डेटा दूं तो CBSE में तकरीबन इस समय CBSE से एफिलिएटेड तकरीबन 30,000 स्कूल हैं भारतवर्ष में, और उसके अंदर तकरीबन 6 करोड़ स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल्ड हैं मिडिल क्लासेस में, और 24 करोड़ सभी फ्रॉम फर्स्ट टू 12। और CBSE वो स्कूल्स हैं जो ये मान के चलती है, जिनका ये रूल है कि आपको NCERT की किताबें ही पढ़नी होंगी और पढ़ानी होंगी। तो आप ये मानिए कि कितने बड़े संख्या में, और 6 करोड़ अगर मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है जो 8वीं क्लास पास करेंगे, वो 4 साल में आपके वोटर्स होंगे। तो आप ये समझ लीजिए आज जिन बच्चों को आप ये किताबें पढ़ा रहे हैं, उन किताबों का प्रभाव उन बच्चों के ऊपर मानसिक रूप से किस प्रकार का होगा, कल्चरल किस प्रकार का होगा, कि वो इन 4 साल में जब वोट करेंगे तो किस तरह की सोच से, किस तरह के वैचारिक और नैतिक मूल्यों से वो अपने प्रभावित होंगे। जैसे मैंने बोला कि क्या ये आक्षेप सही है कि कांग्रेस ने डिस्टॉर्ट किया और करेक्ट किया, तो इसके लिए हमें ये बात समझना चाहिए कि हिस्ट्री एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री अगर उस बैलेंस पर्सपेक्टिव से का बात नहीं करेगी तो वो जो स्क्यूनेस है उसके अंदर जो इस तरह का जो मतभेद है, वो मतभेदों को हमें प्रूव करने के लिए या स्थापित करने के लिए किसी तरह की थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा। अब यदि हम लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात को समझें
और ये एक रोड्स आइलैंड पर एक किताब है, उसमें ऑथर लिखते हैं कि लेफ्टिस्ट कौन है। लेफ्टिस्ट वो व्यक्ति है जो इक्वालिटी में विश्वास रखता है, इगैलिटेरियनिज्म में विश्वास रखता है, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और सेक्युलरिज्म में विश्वास रखता है। और यदि आप इन सब बातों में विश्वास रखते हैं, अगर आप मानते हैं समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, इगैलिटेरियनिज्म होना चाहिए, तो आप एक लेफ्टिस्ट हैं। और राइटिस्ट दूसरी तरफ किस प्रकार की चीज़ों के लिए मशहूर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को मानने के लिए राइटिस्ट जो है ज़्यादातर जाने जाते हैं। तो ये जो अगर इस तरह का आक्षेप है कि ये डिस्टॉर्शन किया और उन लोगों ने किया जो लेफ्ट की विचारधारा में, और लेफ्ट अपने आप में एक तरह का एक बहुत समाहित है, उसके अंदर बड़ी सारी आइडियोलॉजीज और बहुत तरह के पॉलिटिकल थॉट्स, उसमें सेक्युलरिज्म भी है, उसमें सोशल डेमोक्रेसी है, उसके अंदर आपको लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म मिलेगा, कम्युनिज्म मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी संरचना है लेफ्ट, वो केवल एक तरह के आधारों से निर्णय नहीं ले सकते। तो ये डिसीजन लेना कि डिस्टॉर्शन हुआ है, वो इन संदर्भों में लेना पड़ेगा कि क्या वो डिस्टॉर्शंस वाकई स्ट्रक्चरल हायरार्की और इनइक्वालिटी को जन्म देने वाले डिस्टॉर्शंस हैं, या वो बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। और एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है, हिंदुस्तान आज़ाद होता है, तब नेहरू जी पर या उस समय की सरकारों पर ये दबाव था कि समाज के अंदर सामंजस्य रहना चाहिए, एकता रहनी चाहिए और एक बैलेंस हिस्ट्री का प्रदर्शन करने की जरूरत थी। हिंदू एक्सट्रीमिज्म और मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म दोनों, हिंदू कम्युनलिज्म और मुस्लिम कम्युनलिज्म दोनों के विपरीत, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह की किसी भी प्रकार की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या हमारा जो समाज की संरचना है उसके अंदर इस तरह के एक्सट्रीमिज्म किसी तरह का मतभेद कर सके। तो पार्टीशन के बाद 1947 के बाद जिस तरह के हालातों को नेहरू जी ने और देश ने इनहेरिट किया था, और वो पहले प्रधानमंत्री थे जिनके सामने ये टास्क था, तो जो बॉडीज जिन्होंने इस तरह की किताबें लिखी, जो हिस्टोरियंस, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन था समाज में इस तरह की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनल कॉन्टेक्स्ट को बैलेंस करने का, और एक बैलेंस हिस्ट्री को दिखाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमें ये बात को नहीं भूलना चाहिए कि हिस्ट्री जो है वो हमेशा एक पॉलिटिकल टूल रही है। इसीलिए मैं यहाँ से आपको दूसरे भाग पर ले चलती है, जो है नॉलेज का भाग, जो है ज्ञान का भाग, कि ज्ञान क्या है और ज्ञान कैसे बनता है। उसमें सबसे ज़्यादा बात हमें जो समझना, और मैं बहुत जोर देकर इस बात को कहना चाहती हूँ कि नॉलेज और पावर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन है। नॉलेज, वही नॉलेज, पावर उसी या सत्ता उसी नॉलेज को सपोर्ट करती है जो सत्ता को बने रहने में सहायक होती है, और जो नॉलेज उस सत्ता को गिराएगी, उस सत्ता को चैलेंज करेगी, उस सत्ता को रेजिस्ट करेगी, पावर उस नॉलेज को सपोर्ट नहीं करेगी। और इस समय पावर किसके पास है? पावर इस समय ऐसे फोर्सेस के पास है जो सेक्युलर होने का, डेमोक्रेटिक होने का, प्रोग्रेसिव होने का, ये जो अपने आप में इनके अंदर जो नैतिक और एथिकल और कल्चरल जो वैल्यू है, उसको वो एक अपनी आइडियोलॉजी में समाहित करने में उनके पास किसी तरीके के आप संकोच देख सकते हैं, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो सर ने भी कहा। तो पावर क्या करती है? पावर अपने लिए सब्जेक्ट्स बनाती है, और सब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं? पावर का काम है गवर्नेंस। पावर क्या चाहती है? सत्ता चाहती है रूल करना, और रूल करने के दो ही तरीके हैं, या तो मैं एक्सटर्नल फोर्स से रूल करूं, मैं पुलिस से रूल करूं, मैं सेना से रूल करूं, मैं अपने लीगल डिक्टेट से रूल करूं। दूसरा तरीका पावर का है कि हमें वो स्वचालित, स्वनिर्धारित सब्जेक्ट्स बना दें, हमें इस चीज को इंटरनलाइज करवा दें कि यही सच है। तो सच की रियासतें पैदा की जाती हैं, और इस समय सच की सबसे बड़ी रियासत है धर्म, रिलीजन। पहले हिस्ट्री के अंदर धर्म को समझा जाता था, अब धर्म के अंदर हिस्ट्री को समझा जा रहा है। इस फर्क को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। तो ये सत्य की जो रियासत बनाई गई है, ये सत्य की जो एक रिजीम क्रिएट की गई है, जिसे रिजीम ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा रिजीम इस समय है धर्म। और आप ये समझिए, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल हर इवेंट को आज हमें इस रिजीम के तहत समझने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और हमारी तैयारी कराई जा रही है कि आप किसी भी इवेंट को समझना चाहते हैं वो आप धर्म की नजर से समझिए। अगर धर्म में वो बात है, और वो कौन सा धर्म है? वो धर्म का भी एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है, वो है हिंदुत्व। और अब क्या है? नियो हिंदुत्व। नियो हिंदुत्व क्या है? वो ऐसा नियो हिंदुत्व का ऐसा कॉम्पोजिशन है कि उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन है कि हम
उस प्रकार के प्रोसेसेस में अपने आप को एग्री करके खुद एक्सेप्ट कर ले, जहां पर हिंदू या ब्राह्मणिकल नॉलेज को ही नॉलेज माना जाएगा। तो यदि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें कई जगह इंडियन नॉलेज सिस्टम का बार बार संदर्भ आता है, और वो इंडियन नॉलेज सिस्टम अगर आप ध्यान से देखें और जिस तरीके की घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम बेसिकली हिंदू नॉलेज सिस्टम है, और वो भी ब्राह्मणिकल नॉलेज सिस्टम है। जैसे मारिया जी ने कहा कि दलितों का इतिहास, महिलाओं का इतिहास उसके अंदर से पूरी तरह से नेगेट कर दिया जाता है। इसीलिए आप अगर हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो ब्राह्मण डिस्कोर्स जो है या हिंदुत्व का वैदिक डिस्कोर्स जो है उसकी आपको बहुतायत मिलेगी। जैनिज्म, बौद्धिज्म या दलितों के इतिहास पर आपको बात नहीं मिलेगी। तो इतिहास अपने आप में किस प्रकार की चीजों का वर्णन कर रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, और सब्जेक्ट्स का निर्णायक बन रहा है। और वो सब्जेक्ट्स कौन है? वो सब्जेक्ट्स हम हैं। हमें इस तरह की टेक्स्ट बुक से, इस तरह के हिस्ट्री के ज्ञान से, साइंस की सबसे पहले स्पेस ट्रैवलर कौन थे? हनुमान जी थे। बच्चा कैसे पैदा होता है? मोरनी के आंसुओं से वो पैदा होता है। या पीरियोडिक टेबल को हटा दिया जाए, डार्विन को पढ़ाने का जरूरत नहीं है। इस तरह के जो अटैक्स हैं, आप हिंदी की किताबें उठा के देखिए, आप देखिए किस प्रकार के लेखकों को पढ़ाया जा रहा है। आरएसएस की हिंदी आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उनके प्रचारकों द्वारा लिखे गए टेक्स्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो पावर क्या कर रही है? पावर सिलेक्टिवली एक प्रकार की नॉलेज का चुनाव कर रही है और उसे टेक्स्ट बुक्स में जगह दे रही है। अब इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो हमें ध्यान से समझना चाहिए, और ये यूनिवर्सिटीज में भी हो रहा है। इस समय देश में 50% रिजर्वेशन लागू है शैक्षणिक संस्थाओं में। मतलब अगर वहाँ 100 सीटें हैं तो उसमें 50 SC ST OBCs होंगे, और अगर मेरिट में आए तो 10 और होंगे। अगर आप स्कूलों का कॉम्पोजिशन देखें तो मैं डेटा लाई हूँ जिसमें लिखा है कि मिडिल स्कूल के अंदर 6 करोड़ में से तकरीबन 50 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो दलित हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दलित हैं, OBCs हैं। आप ये देखिए, जब शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन होता है 1990 के डकार फ्रेमवर्क के बाद और 2000 के बाद, 2000 डकार फ्रेमवर्क के बाद, और जब भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है तो प्राइमरी स्कूलिंग को सबके लिए कंपलसरी कर दिया जाता है। मतलब जो बच्चे पहले स्कूल से बाहर थे उनको स्कूल में लाया जाता है, और वही बच्चे मिडिल स्कूल में आते हैं, वही बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं। तो यदि पहले 20% बच्चे कक्षाओं में पढ़ रहे थे, तो अब आपके 50% बच्चे जो हैं वो स्कूलों में है, कॉलेजों में। और वो जनसंख्या कौन है? वो हिंदुओं में अगर आप देखें तो दलितों की भी है, SC की, ST के, मुस्लिम्स है, जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियंस है, और वो दायरा बढ़ गया है समाज में। और जब ये दायरा बढ़ा, जब लोग शिक्षा लेने स्कूलों में पहुंचे, कॉलेजों में पहुंचे, यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, और मैं ये बात बहुत ध्यान से कह रही हूँ, सोच समझ के कह रही हूँ कि 50 से 60% बच्चा जब आपका SC ST OBC, और ये हमें सुनना चाहिए, और इन वर्ग के लोगों को मेरा आह्वान है कि आप सुनिए और समझिए, और जो यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझें कि अगर आपको पढ़ के जाना है, बाहर नौकरी ढूंढना है, तब एजुकेशन कैसी मिल रही है? तब एजुकेशन आपको डिस्टॉर्टेड मिल रही है। तब एजुकेशन आपको RSS द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं की विचारधारा पर बेस्ड मिल रही है। शिक्षक आपको कौन पढ़ा रहे हैं? अब आपके सामने साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, अब आपके पास मॉडर्न रैशनल नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज कौन सी है? एपिक्स की नॉलेज है। महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए। जिन चीजों से वंचित रखा गया सेंचुरीज तक इस कैटेगरी के लोगों को, आज उन्हें क्लासरूम में बुला के उनसे पढ़ा के सब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। उसी प्रकार की वो एक ऐसा आप ये समझ लीजिए, ये एक तरीके का, जैसे राहुल जी ने एक सबसे बड़ा जो स्कैम निकाल के दिया देश को, वोट चोरी का है। तो जब ये बच्चे क्लासेस में आए तो अब ये किताबों से ज्ञान चोरी है। तो ये संस्थाएं, RSS जैसी संस्था, BJP जैसी गवर्नमेंट हमारे साथ ज्ञान चोरी कर रही है। हमारे उन बच्चों को, जो बच्चे अब क्लासरूम से पहुंच के साइंटिफिक मॉडर्न लैंग्वेज से अपने समाज का, अपने कम्युनिटीज के लिए, उनमें से बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन बच्चे, उनको अब आप जबरदस्ती ब्राह्मणिकल नॉलेज और ऐसी डिस्टॉर्टेड नॉलेज पढ़ा रहे हैं कि ताजमहल नहीं है, तेजो महल है, या औरंगजेब एक क्रूर राजा थे किंतु कश्मीर के राजा हर्ष ने कोई गलती नहीं किया, सारे टेम्पल्स केवल मुस्लिम राजाओं ने तोड़े और हिंदू राजाओं ने कुछ नहीं किया। तो ये जो डिस्टॉर्शंस है, ये केवल टेक्स्ट बुक में फैक्चुअल डिस्टॉर्शंस नहीं है, ये डिस्टॉर्शंस एक जनरेशन के साथ है, उनको सब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस है, जिसमें पावर ऐसे सब्जेक्ट को बना के रखना चाहती है कि वो अगले 6 साल में जब वोट करेंगे तो वो किस सच की रियासत से गाइडेड होंगे? वो धर्म की रियासत से गाइडेड होंगे।
तब उनके सामने जब ऐसे तरह के जब माहौल बन रहा होगा कि आई लव मोहम्मद, तो उसमें केवल एक ही तरीका है, एक ही यार्ड स्केल है नापने का, वो है धर्म, कि क्या सही है और क्या गलत है। और देश में कौन दोयम दर्जे के नागरिक है उसका निर्णय कौन करेगी, ये सच की रियासत करेगी। और इस सच की रियासत को आप कैसे आगे पहुंचाएंगे, आप इस रियासत को टेक्स्ट बुक के जरिए आगे पहुंचाएंगे। अब जो आखिरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ वो है खतरों की, कि टेक्स्ट बुक्स और इस प्रकार का करिकुलम और इस प्रकार के स्ट्रेटेजाइज्ड सिस्टमेटाइज्ड करिकुलर्स क्या कर रहे हैं, वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन वो समाज में आने वाली पीढ़ी को डिसिप्लिन कर रहे हैं, मैनिपुलेट करके उनके नैतिक, उनके आर्थिक, उनके पॉलिटिकल हर प्रकार की एजेंसी को डिसिप्लिन कर रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि आप इसी संदर्भ में सोच सकते हैं, इसके अलावा अगर आप सोचेंगे, अगर आप रेजिस्ट करेंगे, अगर आप इसके विपरीत कुछ विचारों को रखेंगे तो उन विचारों की मान्यता नहीं होगी। ये टेक्स्ट बुक्स और इस तरह की एजेंसीज और एनसीईआरटी को सोचना चाहिए कि उसका स्थापना किस लिए की गई थी और किस प्रकार के विशेषज्ञ इस समय टेक्स्ट बुक्स लिख रहे हैं, कि उन्हें ध्यान देना चाहिए इस बात की ओर कि जो ज्ञान की संरचना वो कर रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है जिसे सत्ता ज्ञान मानती है। लेकिन क्या एकेडमिशियंस उसे ज्ञान मानते हैं? इरफान हबीब साहब ने एक इंटरव्यू में बड़े मासूमियत से कहा कि उनकी सरकार है, कुछ भी लिखवा ले, जैसी मर्जी हिस्ट्री लिखवा ले, जो मर्जी हिस्ट्री लिखवा ले। वो उस चीज से इस कदर परेशान हो गए कि अब उससे सिंपल तरह से उनके पास कहने का कोई तरीका नहीं बचा है। और ये हमें सोचना चाहिए, ये हमें एजुकेशनिस्ट को सोचना चाहिए, पेरेंट्स को सोचना चाहिए, स्कूल के टीचर्स को सोचना चाहिए कि ये जो मैनिपुलेशन है और ये जो डिसिप्लिनिंग है और ये जो कंट्रोल है, ये पावर का किया जा रहा खेल है, उस सत्ता को बनाए रखने के लिए खेल है, इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे वो डिस्टॉर्शन कह लीजिए, चाहे वो करेक्शन कर लीजिए, लेकिन वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना चाहिए, वो रिसर्च के स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना चाहिए। और ये बात स्थापित की जानी चाहिए कि यदि वो सच है, और सबने बोला कुछ चीजें तो सच होती हैं, सच तो सच होता है और सच के सामने सबमिशन करने में किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जिस सच को क्रिएट करने के लिए पूरा दम खम बल लगा दिया जाए, वो सच एक कॉन्स्टिट्यूटेड कंस्ट्रक्टेड सच है, वो पावर से गठजोड़ करने वाला सच है। और उसमें संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का बहुत खास रोल है, वहां पर आइडियोलॉजी का एक रोल है। तो आप भी पूछ सकते हैं आइडियोलॉजी तो सबकी, तो मैंने आपको अभी बोल दिया कि आइडियोलॉजी की मेजरमेंट की जाएगी कि वो आइडियोलॉजी किस प्रकार की आइडियोलॉजी है। और फाइनली मुझे बस एक जो मुझे लगता है, मैं क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट हूँ और अगर मैं बहुत सारी बातों का संदर्भ ले रही हूँ तो मुझे एक बड़ी खास बात का संदर्भ लेना चाहिए, वो है टेक्नोलॉजी। मुझे टेक्नोलॉजी को नहीं भूलना चाहिए, और मुझे नहीं भूलना चाहिए कि जो सबसे बड़ा चमत्कार इस सेंचुरी में हो चुका है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्कोप कहाँ पर है हमारे बच्चों के लिए, स्कोप कहाँ पर है इन टेक्स्ट बुक से आगे निकलने का, स्कोप हमें टेक्नोलॉजी देगी। तो टीचर्स को आह्वान है कि वो इस तरह के जो ज्ञान के अंदर, नॉलेज के अंदर, या जो टेक्स्ट बुक जो टूल है उसके अंदर इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करने के लिए, या उससे निजात पाने के लिए, या उसको काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। आप पढ़िए रिसर्चेस, टेक्नोलॉजी हर उस चीज को आपके सामने प्रस्तुत करेगी। अगर आप एक एआई पर एक सर्च करेंगे, केवल इतना सर्च कर लीजिए कि औरंगजेब किस प्रकार का राजा था, तो वो 111 या 121 आर्टिकल्स के बेसिस पर आपको रिजल्ट तैयार करके देगा। तो टीचर्स को, स्कूल्स को और स्टूडेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि इस समय जो हमारे सामने ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड टूल्स हैं, उन्हें हम अपनी ताकत बनाएं, हम उन्हें अपने काउंटर नैरेटिव्स को ज़्यादा पुरजोर करने के लिए इस्तेमाल करें, उससे घबराएं ना, उसका मजबूती से प्रयोग करें। तो यदि पावर हमारे सामने, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमें समझना चाहिए, शायद हम ये कभी ना बता पाए कि पावर है, इसके हो सकता है प्रमाण हमें कम मिलती हो कि पावर है, सत्ता है, रूल है, लेकिन इसका प्रमाण जरूर मिलता है कि रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हमेशा बताती है कि पावर है, तभी तो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें ज़रूरत है ऐसी चीज़ों का हम उपयोग करें जो हमारे पास इजीली, ओपनली अवेलेबल है, जिसमें टेक्नोलॉजी हमारा एक सहारा हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, और मैं फाइनली ये कहना चाहती हूँ कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर चाहे डिस्टॉर्शंस हो, चाहे करेक्शंस हो, वो फ्रेटर्निटी करेगी, उस फ्रेटर्निटी के अंदर एस्टैब्लिश्ड स्क्रूटिनाइज्ड रिसर्च वर्क करेगा। वो इमोशंस और पैशन से बात नहीं हो सकती है, और सच की रियासतें बदलती रहती हैं और समय के अनुसार इसलिए सच भी बदलता रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हिस्ट्री इज कंटिंजेंट ऑन सर्टेन फोर्सेस,
लेकिन हम सब्जेक्ट्स ना बन जाए हिस्ट्री के लिए, उसके लिए हमें बहुत सारे तरह से अपनी एजेंसी को जिंदा रखना होगा, कायम रखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। नाजरीन, तारीख के साथ खिलवाड़ पर मुश्तमिल डॉक्टर कंचन की इस तकरीर के बाद बहुत सारी वजाहतें भी हो गई और ये समझ में भी आ गया कि किस तरह अजीम जमहूरी हिंदुस्तान की तारीख को मसख करने की कोशिशें की जा रही है। नए मुकर्रिर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए सियासत टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।